یہ بات ہے قرآن کی۔ لبید، تمہارا جادو نبی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا، اوپر سے تمہاری بڑی بڑی باتیں اور تمہاری لفاظیوں نے ہمیں ہمارے بزرگوں کے آگے شرمندہ کر دیا۔ پوری کوشش کی لیکن مجھے لگتا ہے آپ سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ بات ہے قریش کے اس کالے راز کی جس کو رات کے اندھیرے میں بنا گیا۔ تو پھر یہ طے رہا، جو غریب مسلمان بن چکے ہیں ان غلاموں پر اتنے ظلم ڈھاؤ کہ درد ان کی روح تک اتر جائے، اور جن پر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے انہیں زبان سے اس طرح رسوا کرو کہ وہ شرم سے نگاہ نہ اٹھا سکیں۔ لاجواب۔ مسلمان پہ اتنا سارا یہ ظلم۔ بات ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس۔ قل اعوذ برب سبحان الناس اللہ۔ ملک الناس الہ الناس۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے والا ہوں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سورہ ناس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی آخری سورت سورہ ناس؟ ہم لوگ اکثر نماز میں سورہ ناس تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس کے پیچھے کی کہانی اور اس سورہ کا طاقت کا اندازہ ہے؟ سورہ ناس صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں مانسکتا بیماریوں اور ڈپریشن، COD جیسے برے خیالوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ آج ہم ریل مکتوب کا یہ کمال کا ویڈیو دیکھیں گے جو ہمیں 1400 سال پیچھے مکہ کی ان گلیوں میں لے جائے گا جہاں اس سورہ کے نازل ہونے کے پیچھے ایک ایسا واقعہ چھپا ہے جسے سن کر ہم سب کا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آج میں اور آپ اپنی نمازوں میں سورہ ناس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے سانس لے رہے ہیں، صحیح بات، بنا سوچے بنا سمجھے، ایک رسم کی طرح، بہت جلدی پڑھتے ہیں۔ عادت کی طرح۔ کیا ہے سورہ ناس کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ اور کس طرح یہ سورت ہمیں ڈپریشن، OCD، نیگیٹو تھاٹس اور ان سارے برے خیالاتوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے جو لگاتار ہمارے ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کس طرح یہ سورت ثبوت ہے قرآن کے ٹائم لیس ہونے کا، یعنی اس بات کا کہ 1400 سال پرانی یہ کتاب صرف ہسٹری نہیں بلکہ انسانوں کے لیے آج کی فائدے کا آیت ہے، موسٹ ریلیونٹ کتاب ہے۔ بے شک۔ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قل اعوذ برب الناس۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق مکہ میں ایک ساتھ نازل ہوئیں اور اسلام کے اس شروعاتی دور میں نازل ہوئیں جب مسلمانوں کے لیے وہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا، جب مکہ کی زمین دھوپ سے زیادہ نفرت سے جل رہی تھی۔ ابو جہل، امیہ ابن خلف اور مکہ کے باقی سرداروں کے ہاتھوں میں سبھی چھالے بچ نبی گئے، صلی اللہ علیہ لیکن وسلم سے ان کے دشمنی غلاموں رکھتے کا تھے۔ ایمان تھا کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور جب قریش کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑیں گے، تب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مقصد کو، اس میسج کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ میں آپ سب کی رائے جاننا چاہتا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی کو روکنے کے لیے؟ میرا خیال ہے آپ کو کسی ویرانے میں زنجیروں سے جکڑ دیا جائے، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو۔ اور تم کیا کہتے ہو ابو جہل؟ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ معاذ نہیں، اللہ۔ اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ بہترین خیال۔ اور اسی ارادے کے چلتے یہ لوگ دن رات پلاننگ کرتے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ، استغفر ابن اللہ، ہشام، لیزلی ہیزلٹن، کیرن آرمسٹرانگ اور بھی بہت سارے ماڈرن اور ٹریڈیشنل رائٹرز کی کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ ابو جہل لگاتار مسلمز کو ابیوز کرتا تھا، جہاں ہاتھ اٹھا سکتا تھا ہاتھ اٹھاتا تھا، معاذ جہاں اللہ، گالیاں دے سکتا تھا گالیاں دیتا تھا۔ اگر تو اس راستے سے نہیں ہٹا تو انجام مسلمانوں کو بہت پریشان کیا جاتا گھر تھا۔ والوں کا بھی خیال کر۔ اللہ ایک ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ ایون ابن ہشام اپنی کتاب کامل سیرت النبی میں یہ بات مینشن کرتے ہیں
کہ सरदारों की ये जो हसद थी, जो जलन थी, ये जो झगड़ा था, ये रसूल अल्लाह से उनके पैगाम को लेकर नहीं था, बल्कि ये इनकी अपनी हसद की, अपनी ईगो की आग थी। अबू जहल खुलेआम कहा करता कि जब जब बनु हाशिम ने, यानी उस कबीले ने जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों को खाना खिलाया, गरीबों की मदद करी, तब अबू जहल के कबीले ने भी इन लोगों को खाना खिलाया। जब रसूलुल्लाह ने गरीबों को अनाज बांटा तो अबू जहल ने भी बांटा। जब हाशिम कबीले ने सफर के लिए सवारियां दी तो अबू जहल ने भी दी। किसी चीज की जरूरत हुआ करे तो मुझसे कहा करो। ये कुछ ऊंट बनु मखजूम की तरफ से हैं। सिर्फ हाशिम ही मक्का का ख्याल नहीं रखते, हम भी मक्का के फिक्रमंद हैं। ये लो, आज से ये ऊंट तुम्हारे हुए। बड़ी मेहरबानी। जाओ, शाबाश, बेफिक्र सफर करो। असल में मक्का के कबीले के सरदारों के अंदर ये कोल्ड वॉर दादा परदादाओं के ज़माने से चलती चली आ रही। कोई भी कबीला या कोई भी सरदार ये नहीं चाहता था कि वो किसी और से कम दिखे, इसीलिए ये हर बात में एक दूसरे से टक्कर लिया करते, बहस लगाया करते, बराबरी किया करते। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको नबुव्वत के लिए चुना है और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो अबू जहल को समझ ना आया कि अब वो किस तरह से मुकाबला करे। खुद सोचो मैया, अब इस मैदान में किस तरह मुकाबला किया जाए। अल्लाह अबू जहल दुश्मनी रखने लगे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि आप अल्लाह के नबी हैं। फिक्र मत करो, हाशिम कबीला कभी तुम्हारे कबीले से ऊंचा न हो सकेगा। जब आप सीरतुन नबी का मुताला करेंगे, उसे और गहराई में जाकर स्टडी करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि ये जो नफरत की आग थी, ये सिर्फ कबीलों के सरदार के अंदर नहीं जल रही थी, बल्कि मक्का के हर घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसा जा रहा था। मक्का के जवान लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और उनके सवालों के आगे माँ बाप लाजवाब थे। अब तो हद हो गई है, फुहैरा का लड़का भी बाप दादा के दीन से फिर गया है। सुना है उम्मे ऐमन और अस्मा भी ईमान ले आई हैं। सही सुना है आपने। अल्लाह की कसम, उसने अपने बाप के सामने मनात को फेंक दिया। क्या सच में? शुरू से बताओ, हुआ क्या? होता क्या, उसने कहा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं इसकी इबादत करूं? बिल्कुल, ये अल्लाह की बेटी मनात है, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। बेटे, यही सच्चा दीन है जो हमारे बाप दादा ने। दौर में लोग भटक चुके थे जब नबी की आमद हुई। नादान कहीं के, ये क्या कर रहा है? दूध को तोड़ दिया गया। या अल्लाह, ये तो खुद की हिफाजत न कर सकी, मेरी क्या हिफाजत? सही बात है, हक की आवाज यही है। दौर था जब सिर्फ मुट्ठी भर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कंधे वसल्लम से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, वरना सारे अरेबिया के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि अब किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए, और इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बल्कि अब जो गरीब परिवार थे, जो छोटे तबके के लोग थे, इन लोगों ने नए नए पैतरे आजमाना, जादूगरों के पास जाना, कमज़ोर मुसलमानों को तकलीफ देना, उन्हें घरों में बंद कर देना, और इस तरह की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह इस्लाम को रोक दिया जाए, बीमार पड़ जाएं, दीवाने हो जाएं, या फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, ताकि कम से कम ये एक अल्लाह की इबादत का पैगाम यहीं पर थम सके, रुक जाए। या मोहम्मद, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने कभी ऐसी बातें नहीं की और अब अचानक। हमें आपसे कोई बैर नहीं, हमें परेशानी है आपके कलाम से। हमारे बच्चे अपने बाप दादा का दीन छोड़ रहे हैं। बंद कीजिए ये सब, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। हाँ बिल्कुल, बंद कीजिए ये सब। मौलाना मौदूदी, इब्न कसीर और तमाम स्कॉलर्स ये बात मेंशन करते हैं कि जब कुरैश की बदतमीजियाँ, उनका ह्यूमिलेशन और उनकी साजिशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ अपने उरूज पर पहुंच गईं, अपने पीक पर पहुंच गईं, बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगे थे लोग। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हिफाजत की यानी सेफ्टी की दो ऐसी सूरतें लेकर हाजिर हुए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक साथी बने। सुभान अल्लाह। ये सूरतें थीं सूरह फलक और सूरह नास। तुमने सुना महबूब, कल उकबा बिन आमिर बता रहे थे कि नबी पर दो ऐसी सूरतें नाजिल हुई हैं जो पहले कभी नाजिल नहीं हुई थी। सूरह फलक और सूरह नास के बारे में मैंने भी यही सुना है। इस बार तो मोहम्मद ने कमाल कर दिया उमैया। खुद बताओ, अब तलवार का मुकाबला कलाम करेगा? आप तो यही कहते हैं
कि ये हिफाजती कलाम इन दोनों सूरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि के वसल्लम दिल में वो अजीम हिम्मत फूंक दी जिसके आगे कुरैश की हर साजिश, हर जुल्म, नाकाम हर हो गया। काला जादू तिनके की तरह बिखर गया। और सोचने वाली बात भी है कि हक बात के आगे वही इंसान बिना डरे बिना झुके खड़ा रह सकता है जिसको इस बात का यकीन हो कि बेशक सारी कायनात का मालिक उसका अल्लाह है। बेशक नाजरीन, आप लोग जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुने तो उन पर दरूद शरीफ जरूर पढ़े कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह नास फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करने किया करते। हालांकि उलमाओं के बीच ये थोड़ा कशमकश का मामला है कि ये दम करने का सिलसिला कब शुरू हुआ। क्या ये मक्का की उन रातों से शुरू हुआ जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दिया, या फिर ये उस वक्त शुरू हुआ जब आप मदीना हिजरत कर चुके थे और लबीद बिन अल असम के मनहूस जादू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया था और उस लम्हे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको यही दो सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया। आप इन दोनों सूरतों की एक एक आयत पढ़ते चले जाते और काले जादू की एक गांठ खुलती चली जाती। बेशक ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की। ज्यादातर मुफस्सिरीन स्कॉलर्स यही मानते हैं कि ये दम करने का मामला मदीना में ही शुरू हुआ, इस जादू वाले इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ। तो अगर आपने अभी तक सूरह फलक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों सूरतें कुरान में अलग अलग चैप्टर्स के तौर पर लिखी हुई हैं, लेकिन इन दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा गहरा है कि इसके लिए हमें दोनों सूरतों को समझना बहुत ही जरूरी है। बेशक हालांकि पिछली वीडियो के बाद कई लोग बड़े नाराज हो गए कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई, रसूलुल्लाह पर क्या जादू हो सकता है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, जब आप कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ तो शायद जाने अनजाने आप कुरान को और उन तमाम स्कॉलर्स को झुठला देते हैं जिनको सारे उलमा, सारे इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं। ये नाइल्मी में लोग कह देते हैं, इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। वो अल्लाह के हुक्म से हुआ ताकि आम लोगों को, हम लोगों को एक मिसाल मिल सके कि इस तरह की सिचुएशन में हमें किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है। दूसरा जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये क्यों कहा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कि लोगों के रब की, लोगों के मालिक की, लोगों के खुदा की, ये लोगों का लफ्ज़ ही इस्तेमाल क्यों किया गया? अल्लाह चाहते तो कह देते कायनात का रब, सारी मखलूक़ात का रब, हर क्रिएशन का रब, लेकिन बार बार यहाँ पर लोगों को ही मेंशन किया गया है, नास को ही मेंशन किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंसान जो है ना वो अशरफुल मखलूक़ात है। बेशक इंसान से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने और इंसान को बहुत ही अक्लमंद बनाया है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, वो अपने वजूद से बढ़कर चीजों को चाहता है और उन्हें हासिल कर लेता है। जैसे इंसान ने सोचा कि भाई मैं हाथी की सवारी करूंगा, अब हाथी कितना बड़ा होता है लेकिन इंसान कर लेता है, इंसान उसकी सवारी करता है। चांद कितना दूर है, इंसान देख लेता है, मुझे सफर करना है और उसने वहां का सफर किया। समुंदर कितना गहरा है लेकिन इंसान उसमें मछली की तरह तैरता है। दुनिया के किसी बंदर को, किसी चिंपैंजी को इस बात की फिक्र नहीं होगी कि वो दुनिया का परफेक्ट केला खाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह तबारक ताला ने सारे मखलूक में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा मखलूक, अच्छे से अच्छा इंसान को बनाया, वजूद से बढ़कर काम करूं। लेकिन अब सवाल ये है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस बात में है कि जब आप ये भूल जाते हैं कि कोई है जिसके पास आपको जाकर जवाब देना है, तब आपका मॉरल खत्म हो जाता है। फिर आप एप्स्टीन फाइल जैसे केसेस को देखते हैं, फिर आप करप्शन देखते हैं। सही बात है, जब ये भूल जाता है इंसान तो गुनाहों करना शुरू कर देता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है। दुनिया का जो काम करना चाहो करो, लेकिन अपने रब को राजी रखे। और रब को कैसे राजी रखा जाता है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी नेकियों पर, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के साथ। कुरान में ये बात कई बार मेंशन हुई है, कई जगह मेंशन हुई है। इसके अलावा एक बड़ी मजे की आपको मैं बात बताता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो सीक्वेंस सेट किया है, यानी कि रब है, मालिक है, इलाह है, अल्लाह है, इस सीक्वेंस के पीछे भी बहुत बड़ी एक राज है। बेशक इंसान की जिंदगी को गहराई से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इंसान 3 फेजेस में अपनी लाइफ को जीता है। सबसे पहला फेज होता है बचपन का। एक बच्चे को क्या चाहिए? सिर्फ एक माँ की जरूरत होती है।
جو اس کی بھوک کا خیال رکھے, اس کی حفاظت کرے, اس کی بیسک نیڈ کو فلفل کرے. اور اسی وجہ سے پہلی آیت میں کہا گیا رب الناس, رب یعنی کیئر ٹیکر, جو خیال رکھتا ہے آپ کا, جو حفاظت کرتا ہے آپ کی. دوسرا ملک الناس, جب انسان تھوڑا سا اپنی ایڈلٹ ایج پر پہنچتا ہے تب اسے ضرورت ہوتی ہے باؤنڈریز سیٹ کرنے کی. ایون بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے انہیں سکھانا پڑتا ہے, نہیں یہاں نہیں جانا ہے. اور جیسے 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 آپ ایڈلٹہڈ کی طرف پہنچتے چلے جاتے ہیں تب سوسائٹی, رولز, اتھارٹی آپ کی سمجھ میں سارا کچھ سمجھ میں آنے لگتا باس ہے. پریشر میں ڈال کر آپ سے کئی بار غلط کام بھی کرواتا ہے. ووٹ لینے کے لیے کئی بار پولیٹیشین الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں. صحیح بات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ملک کا لفظ استعمال کیا, مالک کا لفظ استعمال کیا, تاکہ انسان کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ کسی سے مت ڈرو, غلط کام بالکل مت کرو, کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے, حفاظت کر رہا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے ہر عمل کو نوٹس کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. تیسرا بہت امپورٹنٹ لفظ ہے الہ, یعنی جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے, اس کا کریئر سیٹ ہو جاتا ہے, کھانے کو 2 روٹی مل جاتی ہیں, اب اسے خدا کی پرواہ ہوتی ہے. اب اسے یاد آتا ہے ارے بھائی اللہ بھی کوئی چیز ہے, ڈیووشن بھی کوئی چیز ہے, مجھے جو ہے اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے جس کے سارے تو بھول بھی جاتے ہیں مال آنے کے بعد, کر کے رو سکوں, گل گڑا سکوں, اس سے بھیک مانگ سکوں. ٹھیک, تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الہ الناس, تو اللہ یہ یہاں پر انسان کو یاد دلا رہے ہیں بے شک کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں تم ایسے خداؤں کو پوجنے لگو جو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے. اسی لیے الہ الناس, پناہ لو اس ایک اللہ کی جس نے ساری کائنات بنایا ہے. بے شک محمد نہیں سمجھے صلی اللہ علیہ صرف وسلم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا, کتنا طاقتور اور کتنا خطرناک دشمن ہوگا کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 ناموں کو ہمیں انووک کرنا پڑتا بے ہے. شک. تو وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن 4تھی آیت میں بتایا گیا ہے, من شر الوسواس خناس. من مطلب ہوتا ہے سے, یعنی فرام, شر مطلب ہوتا ہے ایول, برائی, وسواس وہ تھاٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ایک لمحے کے لیے اور چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن ایک برا خیال آپ کے ذہن میں آ گیا اور اب آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا. اور خناس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے واپس چھپ جاتا ہے, یعنی آپ کے دماغ میں اس نے ڈاؤٹ ڈالا اور واپس چلا گیا, تھوڑی دیر بعد پھر آیا, پھر ایک نیا ڈاؤٹ, ایک نیا بیج بو دیا, پھر چلا گیا, لوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں خناس. خناس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے, وہ ہے پھسپھساہٹ, وسپر, ایسی وسپر جو آپ کو آپ کے مقصد سے ڈیلے کر دے. جیسے اذان ہو گئی, آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے, تو شیطان کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے کہ ٹائم پر جا کر نماز پڑھو, وہ کیا کہے گا 5 منٹ رک جاؤ, تھوڑا ریسٹ کر لو. یا پھر آپ پڑھائی سستی دلا دیتا ہے, پڑھتے ہوئے بس ذرا ہی دیر ہوئی ہے کہ آپ کے دماغ میں شیطان نے ایک آئیڈیا ڈالا کہ بہت دیر ہو گئی پڑھائی کرتے ہوئے, تھوڑا دماغ کو آرام دے دو, تھوڑا ریسٹ کر لو. تو وہ ہوتا ہے خناس جو اس طرح کے ڈاؤٹس کو ڈالتا رہتا ہے آپ کے ذہن میں. تو کیا بات ہوئی ان 4 آیتوں میں ملا کر کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی, انسانوں کے مالک کی, انسانوں کی اللہ کی, تاکہ شیطان کی اس ہلکی ہلکی پھسپھساہٹوں سے, وسپر سے بچ سکوں جو وہ بار 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 میرے ذہن میں ڈال کر پیچھے لوٹ جاتا ہے. اگلی آیت الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ وسپرز, وہ پھسپھساہٹیں جو وہ انسانوں کے سینے میں ڈالتا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے, یہاں ایک بڑی گہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. اگر یہ کہا جاتا تو بات ہوتی فی قلب الناس, فی عقل الناس, لیکن کیا کہا گیا صدور الناس. صدور کا مطلب ہوتا ہے صدور الناس. اس بات کو ایسے سمجھیے کہ اگر شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ بھائی ایسا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز تو ٹھیک ہے پڑھی جائے گی لیکن 5 منٹ آرام کر لو, تو کیونکہ دماغ لاجک پر کام کرتا ہے تو دماغ یہ آئیڈیا اٹھا کر پھینک دے گا اور کہے گا بھائی 5 منٹ میں نے کون سا آرام کر لینا, سب سے پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہ مجھ پہ فرض ہے. لیکن ایمان دماغ میں نہیں ہوا کرتا, ایمان دل میں ہوا کرتا. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کیسے بار بار آپ کا ایمان آپ کو کچوٹتا ہے, آپ کا دل آپ کو کچوٹتا ہے, یار یہ صحیح نہیں لگ رہا. صحیح بات, سب کر رہے ہیں لیکن خیال سا آتا ہے من کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اوپر یہ رحم کیا ہے کہ اللہ نے ہر دل کی چابی ہر انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اگلی آیت من الجنتی والناس, وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں
चाहे वो जिन्नातों में से हों या इंसानों में से। ये आखिरी आयत असल में पिछली वाली आयत को एक्सप्लेन कर रही है। उसमें क्या कहा गया कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो सीने पर आकर वसवसे डालते हैं। और इस आयत में बताया जा रहा है कि वो कौन है जो वसवसे डालते हैं। वो जिन्नात हो सकते हैं और वो इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसानों और जिन्नातों में भी शैतान के एजेंट घूम रहे। सही बात। तो आपको आकर बुरे बुरे आइडियाज देते हैं। आजकल इंसान ऐसा ऐसा काम करता है जिससे शैतान भी शर्मिंदा हो जाता है कि वो आपको बड़े खराब खराब आइडियाज देते हैं, बड़ी बुरी बुरी बातें सिखाते हैं। प्लीज बंद करो ये सब, मुझे नहीं देखना। या फिर बहुत आम सी मिसाल है, आप हिजाब करती हैं और कोई आकर मना कर देता है हिजाब करना। अब आप एक शादी में जा रही हैं, तो अब एक शैतान का एजेंट आप ही के खानदान में से बन के आएगा और कहेगा कि आप बुढ़िया हो गई जो ये झाटा बांध के जाओगी। अरे अभी कोई उम्र हुई है तुम्हारी, माशाल्लाह बाल खोलो। दादी माँ भी यही बोलती है, बाल खोलकर प्यारी लगती हो। भाई वो देख, ऐसे ही लोगों में बही तो क्या बात हुई, बेहयाई फैलती है। अल्लाह के हुक्म से गाफिल कर दिया, वो शैतान का एजेंट। बेशक। और क्योंकि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं उतारा गया बल्कि जिन्नातों के लिए भी उतारा गया है, जिन भी इसे पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ये लोग जिन्नात के ग्रुप में भी होते हैं और ये लोग इंसानों के ग्रुप में भी होते हैं। याद रखिए कि जब आप इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, तो असल में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ज़ात पर, अपने ऊपर जुल्म करते हैं। बेशक। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि सूरह फलक हमें एक्सटर्नल खतरों से बचाती है, यानी बाहरी खतरों से बचाती है, और सूरह नास हमें इंटरनल खतरों से बचाती है, जो हमारे अंदर ही उगते हैं, हमारे अंदर ही पैदा होते हैं। दूसरी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाली है वो ये है कि जब आप कुरान में देखेंगे तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, ये 3 अलग अलग सेंटेंसेस के तौर पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये असल में तीनों को मिलाकर एक ही बात हो रही है, एक ही सेंटेंस बन रहा है। इससे क्या पता चलता है कि कुरान में ज़रूरी नहीं कि एक आयत एक सेंटेंस हो सकता है, कभी बहुत सारी आयतें मिलाकर एक सेंटेंस बने, जैसे यहाँ बन रहा है। तो हम इन तीनों आयतों को एक साथ समझते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के इलाह की, यानी अल्लाह की। कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि एक कमांडिंग वर्ब है, यानी ये अल्लाह का हुक्म है। आऊज़ु यानी कि पनाह लेना, किसी की सेफ्टी में चले जाना। रब अल्लाह का एक नाम है, लेकिन जब आप इसे डीप में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर और 5 नाम एडेड हैं, यानी वो जो खालिक है, जो हमें बनाता है, यानी वो जो हमारा मालिक है, यानी वो जो मुरब्बी है। तो ओवरऑल रब का मीनिंग ये हुआ वो जो केयर टेकर है हमारा, वो मेक श्योर करता है, वो रहनुमा है हमारा, सांस चलती रहे, वो मेक श्योर करता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके सारे ऑर्गन्स, आपके सारे लंग्स बराबर काम करें, बराबर स्पीड से बढ़ते रहें। वो मेक श्योर करता है कि आपकी धड़कन चलती रहे। यानी रब वो जो आपकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखता है। अभी सूरत में 5 बार नास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। नास होता क्या है? नास का मतलब होता है लोग यानी पीपल। मलिक या मालिक वो जो बादशाह होता है, जो किंग होता है, और इलाह यानी कि अल्लाह, जिसके पास हम जाते हैं अपनी हर ज़रूरत के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ना 2 बहुत कमाल की बात है कि पूरे कुरान मजीद में सूरह फातिहा के बाद, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद, यही वो अकेली सूरत है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने 3 नामों को एक साथ मेंशन किया। तो चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि इस पूरी सूरत के अंदर बात हुई क्या है। तो पहली आयत में क्या कहा गया कि कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के केयर टेकर की, और उन लोगों के बादशाह की, और लोगों के इलाह की, यानी अल्लाह की, जिसके पास वो अपनी हर मुश्किल में दौड़ कर जाता है। और पनाह चाहता हूँ उन वसवसों से, उन बुराइयों से जो शैतान
मेरे सीने में डालने की कोशिश करता है। और ये शैतान इंसानों में से भी होते हैं, इंसानों में से होते हैं, जिन्नातों में भी मौजूद हैं। चलिए अब समझते हैं कि आज हमारी जिंदगी में इस सूरत का क्या रेलेवेंस है और असल में वसवास होता क्या है। आज हमारे लिए वसवास, अक्सर लोग तो इसे समझते भी नहीं है। वो है हमारा मोबाइल फोन। आप पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और सडनली आपको एक नोटिफिकेशन आ गई। अब आप जो भी काम कर रहे थे आपका उसे छोड़कर दूसरे जगह ज़हन चला जाता है, स्क्रॉलिंग करने लगे और आप घंटों तक डूम स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। आपको खबर ही नहीं हुई कि कब 5 मिनट के 50 मिनट। बेशक। इसके अलावा और क्या होता है, आपके किसी दोस्त ने, जानने वाले ने एक स्टोरी लगा दी। अब उसकी स्टोरी को देखकर आपने फौरन अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया। सही बात अरे है। देखो उसका मोबाइल कितना अच्छा है, अरे क्या शानदार कपड़े हैं, वो तो हर महीने नया सूट बनवा रहा है। तो हुआ क्या, इंसान भटक जाता है। जो छोटा सा वसवसा, जो छोटा सा थॉट आपके दिमाग में शैतान ने डाला, उससे आप नाशुक्रे हो गए, इनग्रैटिट्यूड आपके अंदर पैदा हो गया। बहक गए आपने इंसान। सोचा ही नहीं कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो सांस लेने के लिए भी उन्हें सिलेंडर चाहिए, अस्पताल की मदद चाहिए। तो शैतान ने क्या किया, आपको आपकी नेमतों से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक उम्मीद जगती है। लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग कुछ सीख रहे हैं। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या खूब जबरदस्त वीडियो था। इस वीडियो ने हमें सिखाया कि सूरह नास की 3 आयतें अल्लाह को रब, मालिक और इलाह मानकर हमें हर तरह की अंदरूनी डर और शैतानी ख्यालात से बचाता है, चाहे वो जिन्नात हो, शैतान हो या हमारे आसपास के बुरे लोग। अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी है। हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कल क़यामत के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें अपनी मोहब्बत में जिलाए और अपनी मोहब्बत में इस दुनिया से उठाए और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में इस दुनिया में रखे तो ईमान के साथ रखे। अगर आपको ये मेरी रिएक्शन वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है तो सवाब की नियत से अपने रिश्तेदार को भी शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक नीचे दिया गया है, अगर आप लोग चाहे तो ओरिजिनल वीडियो को भी रियल मकतूब को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे इसी तरह का कुरानी वाकया लेकर अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।